asked me, yeah. You asked me, do you have any regrets for it? I have no regret. I'm glad. You've been a happy villain. I've been a happy villain. I have been in the industry. I couldn't stay in the industry. लोग मुझे बर्दाश्त करते रहे इतनी देर तक. शायद बतौर हीरो कब की छुट्टी हो गई होती. मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से सुपरस्टार्स थे उन दोनों में, विनोद जी, and they are all not working at all for many reasons. Either they cannot adjust themselves to do these characters, or they are physically not well. So ये एक जरिया रहा कि I could stay in the profession which I love, and I could stay here for this long. What was it like to actually do this book? When Rakita said, let's do this book, did you have any hesitation? Well, I was thinking, how this is possible? What do you want to write? It's a very normal life. But she insisted that, as I just said, 5 decades you've stayed there. And so the people sort of, she was very interested to write everything. And she did such a great job. People who read this, people who read it, like Manoj read it, and Farooq Ratansi read it, they have been calling me up after finishing the book. They said, we can't, they just started the book and they read till the end of the book. It's so interesting. So that proves that I used to tell them, yeah, she is very patient girl and she's a very silent girl. Did you give her a hard time or you opened up? No. She interviewed me. I was older, but of her own. She went to my friends and colleagues, everybody with whom I worked, and she did everything herself. She's her baby totally. And I told Manoj Kumar when he read the book, I said, yeah, you're telling me this. This is how my opinion was about her. He says, you have no right to underestimate the power of pen and the talent of any person. So that's I agreed with him. I said, this is very true, because I also read the book. It was so interesting, it's so engrossing. Your own life. My own life. And there were so many things I didn't know. She could take them out from the clippings that my wife collected, and as you said. So this is something very beautiful, I think. In a way, I will say that she's immortalized me through this book. Absolutely. How wonderful. Yes, And on that note, I'm going to call Mr. Kapish Mehra, who is the publisher from Rupa. But before that, sir, ek baar. You have to say the dialogue. Which one? You know, the one that we all need to hear. I cannot. You have said it so many times. She's written a book on the same dialogue. जैसे आप कहते हैं तो आपको वरना नहीं बोलूँगा तो आप मेरी छुट्टी कर देंगे. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. Thank you. पहली बात तो ये है, याद ताज़ा वो होती जो बासी हो जाए. हमारी याद कोई बासी हुई नहीं और ना होगी. बाकी ये जो किताब का है जो आज, ये हमारी बिटिया ने लिखी है और मुझे बड़ा अभिमान है जिस तरह से उस बिटिया ने ये किताब को लिखा है. प्रेम साहब ने तो 40-50 साल से अपना जादू निखारा हुआ है, लेकिन अभिमान हम दोनों को है कि हमारी बिटिया ने बहुत कमाल काम किया है. और प्रेम साहब ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को, हर फिल्म को, हर रोल को, हर प्रोड्यूसर को, हर को स्टार को अच्छी तरह डिफाइन किया है, बगैर किसी की चापलूसी के हुए. और अगर कोई निंदा के लायक था भी तो उसको इन्होंने बहुत खूबी से निभाया. ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है. ये आपने कहा कि आपको मॉडल कर दिया आपकी डॉटर ने ये बुक के थ्रू. तो ये बुक के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें जो आपके बारे में मेंशन हो और आपको सबसे ज़्यादा. तो किताब पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाए. आपको किताब दी गई, पढ़िए. मनोज जी, एक वक्त ऐसा भी देखा है इंडियन ऑडियंस ने जब प्रेम जी के
किरदार जो उन्होंने निभाए इतने प्रभाव डालते थे ऑडियंस पे कि लोग घर आके निभाए नहीं साहब, निभा रहे हैं। अभी भी निभा रहे हैं, यकीन है। जब उन्होंने निभाया उस वक्त जब दौर रहा है, जब लोग देख के निकलते थे तो इतने प्रभाव पड़ता था कि वो प्रेम साहब को बुरा भला कहते हुए निकलते थे। इतने प्रभावशाली किरदार प्रेम साहब ने कैरेक्टर ऐसे करते थे ना। नहीं ऐसी बात नहीं, शहीद में रुलाया भी इन्होंने। और उपकार के क्लाइमेक्स में सारा क्लाइमेक्स लेके चले गए इमोशनल। ऐसी बात नहीं है। बहुत इमोशनल रोल कलाकार को रोल दिया जाए तो कलाकार ही हो गया। बहुत ये लिखने वाला चाहिए बहुत सामने रोल लिखे जिसमें हर फन मौला है। कलाकार क्या है कि एक पत्थर है, उसको तराश के उसमें से एक मूर्ति बनानी जो है ना, वो बहुत लोगों का काम होता है। आजकल खरीदी हुई बनी बनाई मूर्ति ले लेते हैं, बुत तराश नहीं रहे। थैंक यू सर। चलिए उनको ये पुरस्कार देना चाहिए, हम बहुत खुश हैं। अमित जी जिस तरह हमारी बहुत पुरानी जिस तरह के किरदार रिश्ता रही है, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है और अब तो वो हमारे रिश्ते में हैं। और बेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिता के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। अमित जी जिस तरह के प्रेम जी ने किरदार निभाए हैं वो इतने सशक्त, इतने प्रभावशाली रहते थे कि ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त बुरा भला कहती हुई जाती थी। इतने प्रभावशाली किरदार ने निभाए हैं। ये उनकी कला का प्रदर्शन है कि लोग उनको मानने लग जाते हैं। और एक बहुत बेहतरीन किरदार उन्होंने आपके साथ किया 2 अनजाने में, रंजीत मलिक का। क्या जी बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। हर किरदार उनका, हर फिल्म में जिसमें उन्होंने मेरे साथ काम किया बहुत सुंदर तरीके से किया। कोई एक